Hello everyone, this is Shweta ma'am and welcome to you my YouTube channel Experience the Maths. And today in this video we are going to solve 8th class chapter 9 uh, variation and exercise 9C. And we are taking question number 8. According to the question number 8, A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. C and A can do the same work in 19 days, 9090. In what time can A alone do it? Means A, B, C. We have 3 person and A and B can do the work in 72 days. B and C can do the same work in 120 days, and A and C can complete the work in 90 days. So now we have to find out in how many days does A can complete the work. So first we are considering question number 8. Let A can finish the work in X days. A can finish the work in X days. 1 day work of A 1 upon X work. So in our previous video I explained how we got it 1 upon X because it is as in we are taking it as in unitary method. तो एक दिन का जो वर्क है, वर्क डन बाय A in 1 day, that is 1 upon X वर्क. तो हमें यही X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. जो अब हमें गिवन है हम उसको लेकर के चल लेते हैं. A and B can complete that work in 72 days. So A plus B can finish 72 days. So same 1 day work of A plus B. When A and B working together, so they can complete work in 1 day, that is 1 upon 72 work. B plus C can finish in how many days? They are completing in 120 days. 120 days. So 1 day work, that equal to 1 upon 120 work. AB. Now next is C plus A can finish 90 days. Same work, A and C, when they are working together, they are completing the work in 90 days. So 1 day work is equal to 1 day work is equal to 1 upon 90. So now we have 1 day work of AB, BC and CA. So we can calculate the 1 day work of AB, A, B and C. How can we calculate? When we add all these 3, AB plus BC plus CA. So we can get their 1 day work. So now 1 day work of A, B and C. So what we have to do? We have to add all these 3. Okay? 1 upon 72, 1 upon 120 and 1 upon 90. So when we will add all these 3 and the answer, whatever answer we will get, that is the 1 day work of A, B and C. So now how we will add it? So now till here you have understand. We will move to the next. So now AB plus BC plus CA. So their 1 day work, it will be 1 upon 72. 72, 1 upon 120 and 1 upon 90. But one thing you will notice here,
2 times A here, 2 times B here, 2 times C here. So we can take the now LCM. We will take the LCM of 360. And now we will solve it how many times? 4 times. No, 72. I have already taken the LCM of it. So it will be cancel out 5 times plus 120 to cancel out. So it will be cancel out 3 times. It will be cancel out 4 times. Okay. So now here we are solving, and same thing we are solving over here also. So 2 is here. So A plus B plus C. Okay. 1 day work. By this we are getting the 1 day work of A, B and C. So now it will be 3 and 8, 12. 12 upon 360 into 2. So 2 here it is in multiplication. So when we will transpose it, it will be go into division. So 2 6 ja and 6 6 ja. 1 upon 60 work. So 1 day work of A, B and C, that is equal to 1 upon 60 work. It is clear till here? So now we know we have to find out the 1 day work of A. Okay. And B and C 1 day work we already know. Okay. So how can we can write it? 1 day work of A, that is equal to 1 upon X. We have taken in the beginning. 1 day work of A, that is 1 upon X, plus 1 upon 1 day work of B and C, that was 1 upon 120. 120 is equal to 160. Sorry, 60. So 1 upon X equal to 1 upon 60 minus 1 upon 120. 120 will be the LCM. 2 minus 1 is equal to 1 upon 120. Okay. So here we will do the reciprocal on the both side. So it will be 1 upon X is equal to 1 upon 120. So X will equal to 120 days. So X can complete the work in how many days? In 120 days. Okay. So now let's move to the question number 9. So let's see what the question number 9 says. A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They begin together, but A leaves 2 days before the completion of the work. In how many days will the whole work can be completed? Okay. So we have two person A and B. They are working together. The same work A can complete in 10 days and B can complete the same work in 20 days. They start together, but before completing the work, before 2 days, just before 2 days, A leave the work. Okay. And now he is asking in how many days the whole work can be completed. Okay. तो जो ये कंडीशन है हमारी, इसमें हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कि कोई वर्क है जो कि हमारे कितने दिन में कंप्लीट होना था, 10 डेज में कंप्लीट होना था, 10 डेज में। तो खत्म होने के 2 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया है। ठीक है। तो ए ने, आप बता सकते हैं कि कितने दिन काम किया? 8 डेज। तो हमको इसमें यही वाला कंसेप्ट लेकर के चलना है। हम इसमें चलेंगे कि जो एक्स है, जो टोटल वर्क है, इट कैन बी कंप्लीटेड टू इन एक्स डेज। जो ये पूरा काम है हम उसको एक्स डेज में क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई एक्स डे में से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो बताइए कि जो ए है जिसने कि 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो उसने कितने दिन काम किया होगा? x माइनस 2। जैसे अभी मैंने 10 माइनस 2 का एग्जाम्पल बताया कि खत्म होने से 2 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। तो जो जितने हमारे पास दिन होंगे उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज हमारे पास इसमें है कि
x ने कितना काम किया, y ने और a ने कितना काम किया, b ने कितना काम किया। तो सबसे पहले हम इसमें कंसिडर कर देते हैं कि द होल वर्क कैन बी कंप्लीटेड, लेट द होल वर्क कैन बी completed in x days. ओके, सो ए और बी जब दोनों ने मतलब साथ में जब वो काम कर रहे थे तो x दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए leave the work before 2 days of completion. 2 days of so A works for how many days? x minus 2 days. और B ने तो पूरा ही किया है, B वर्क्स for x days. ठीक है, तो ये तो हमारा जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हमने ले लिया है। ठीक है, अब जो हमें गिवन है उसमें हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे तक देखिए क्या है, लेट दी होल वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन x डेज। हमने कहा कि भाई x डेज में सारा काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ने खत्म होने के 2 दिन पहले ही अपना काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब कि जब x में पूरा हो रहा था लेकिन उसने 2 दिन काम नहीं किया, तो ए ने कितने दिन काम किया, x माइनस 2, और बी ने तो पूरा x डेज ही काम किया है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? अगर इसको अलोन करता तो उसको 10 डेज में कंप्लीट कर सकता था। तो हम लिख ले ए कैन कंप्लीट दी वर्क इन 10 डेज। यहां से 1 डे का वर्क निकल गया, 1 डे work of A, that is equal to 1/10. B can complete the work in 12 days. B can complete the work in 20 days. 20 days. So 1 day work of B 1/20. तो इन दोनों का हमको 1 डे का दोनों को हमें काम मिल चुका है। ए कितना कर सकता है 1 डे में, 1/10, बी कितना कर सकता है 1/20। ठीक है, अब जो ए ने टोटल काम किया है, कितने दिन काम किया है, x माइनस 2 डेज। बी ने टोटल कितने दिन काम किया है, x डेज काम किया है। तो इसने जब x माइनस 2 डेज काम किया, बी ने x डेज काम किया, तो दोनों ने जब साथ में मिलके काम किया तो उन्होंने एक किसी टास्क को कंप्लीट किया है, मीन्स दे हैव कंप्लीटेड अ होल वर्क। तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में जब होल वर्क को हम डिफाइन करते हैं तो हम 1 से करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेंगे x माइनस 2 डे इंटू 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस x इंटू 1 डे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ से आया, इसको बहुत समझना जरूरी है बच्चे। x ने जब a ने जब x माइनस 2 डेज काम किया और 1 डे का काम उसका 1/10 था, तो x माइनस 2 डे का कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। b जो है दूसरा जो वर्कर है उसका 1 डे का काम है 1/20, उसने टोटल कितने डेज काम किया है, x डेज काम किया है। दोनों ने मिलके जितना भी काम किया उन सब ने एक किसी होल वर्क को कंप्लीट किया, दे हैव कंप्लीटेड अ होल वर्क। तो मैथ्स में होल को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दे हैव कंप्लीटेड अ वर्क, अ वर्क मीन्स 1 वर्क। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करनी है और यहां से हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2/10 प्लस x/20 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ गया 20, 2x माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू 1,
3x इज इक्वल टू 20 प्लस 4 24। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 डेज। मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें कि ए ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया और बी ने कंप्लीट काम किया, तो वो जो पूरा काम है हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा? 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। पीयूष एंड अजीत टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days. They started together, but after 2 days Ajit left the work. स्टार्टिंग के 2 दिन उसने काम किया, उसके बाद उसने काम करना छोड़ दिया अजीत ने। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, ठीक है, देखो कंडीशन क्या थी कि जब अजीत और पीयूष साथ में काम कर रहे थे तो वो उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अजीत ने क्या किया कि उसने 2 दिन काम किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो पीयूष को उसके बाद अकेले काम करना पड़ा, तो उसको 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत पॉइंट वाली बात है कि 2 दिन तो पीयूष और अजीत ने साथ में काम किया, लेकिन अजीत ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, और जब पीयूष अकेला उस काम को कर रहा है तो उसको 2 दिन और एक्स्ट्रा लेने पड़े। तो इसका मतलब पीयूष ने कितना टोटल डेज काम किया? कितने दिन काम किया उसने एक्स्ट्रा? उसने 4 डेज काम किए एक्स्ट्रा। 2 दिन तो उसने अरिजीत के साथ काम किया और 2 दिन उसने अकेले काम किया, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए उसके काम को। ठीक है, पीयूष, अच्छा हमें ये पता करना है कि इफ पीयूष वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट। अगर पीयूष अकेले ही उस काम को करता है तो वो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट पी Piyush can complete the work in X days. ओके, तो अब यहां से 1 डे का निकाल सकते हैं। 1 डे वर्क ऑफ पीयूष कितना हो जाएगा? 1/x वर्क। ठीक है, ये तो हमको जो फाइंड आउट करना है उसको हमने एक वेरिएबल की फॉर्म में कंसिडर कर लिया कि भाई टोटल पीयूष x डेज में कंप्लीट करता है, तो 1 डे का वर्क पीयूष का कितना है? 1/x है। चलिए, अब जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको लेकर के चल लेते हैं। पीयूष और अजीत जब साथ में काम करते हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 3 डेज में। तो पीयूष को मैं P कंसिडर कर रही हूँ, अजीत को मैं A से कंसिडर कर रही हूँ। कैन कंप्लीट the work in 3 days। पीयूष और अजीत जब साथ में काम करते तो दे कैन कंप्लीट इन 3 डेज, तो उनका 1 डे का वर्क वी कैन कैलकुलेट। 1 डे वर्क ऑफ पीयूष प्लस अजीत, इट विल बी इक्वल टू 1/3। 1/3 वर्क, दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में वो 1/3 वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ अभी हमें और क्या गिवन है? हाँ, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज। ठीक है, अब अजीत ने केवल 2 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है। लेकिन हमें अजीत, देखो पीयूष का हमें 1 डे का वर्क हमने कंसिडर कर लिया है, दोनों का हमें मालूम है। पीयूष का हमने कंसिडर किया है और दोनों का हमें मालूम है, तो हम यहां से अजीत का वर्क निकाल सकते हैं 1 डे का। वन डे वर्क ऑफ अजीत क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/x। देखो इसको आप इसमें आगे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि अजीत एंड पीयूष 1 डे वर्क माइनस पीयूष 1 डे वर्क। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते तो उसे लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो तीनों के 1 डे के हमें निकल चुका है। पीयूष का 1 डे का 1/x, दोनों का कंबाइंड करके 1/3, और अजीत का भी 1/3 माइनस 1/x, क्योंकि दोनों ने जितना काम किया उसमें से हमने पीयूष का माइनस कर देंगे तो अजीत का निकल जाएगा। अब हमें देखना है कि अजीत ने हाउ मेनी डेज
अजीत वर्क ओनली 2 days. अजीत वर्क्स फॉर 2 days. ठीक है, अजीत ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है. और बताओ कि पीयूष ने कितने दिन काम किया? पीयूष ने कितने दिन काम किया? ये हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा बच्चे. देखो, किसी काम को, कोई काम 3 days में कंप्लीट हो रहा था, दोनों ने साथ में काम किया. ठीक है, 3 days में उसने कंप्लीट हो जाना था, लेकिन दोनों ने साथ में काम किया. अब 2 दिन तो उसने साथ में काम किया अजीत के साथ और पीयूष के साथ, लेकिन अजीत ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया. तो अजीत के कितने दिन के काम है? 2 दिन का वर्क है. पीयूष का कितना है? 2 दिन उसने अजीत के साथ काम किया, और क्योंकि अजीत ने आधा में छोड़ दिया है, तो पीयूष को 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा. ठीक है ना अजीत? हाँ, इफ द वर्क कंप्लीटेड बाय इन मोर 2 days, तो पीयूष को जो है 2 days एक्स्ट्रा काम करना पड़ा. तो 2 दिन तो उसने उसके साथ काम किया अजीत के साथ, और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया, तो उसके आ गए 4 days. ये आपको क्वेश्चन को समझ के ही पता चलेगा कि ये 4 days क्यों हुए. वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है यहाँ पे कि कैसे जो पीयूष के 4 days हुए, 2 दिन अजीत के साथ और 2 दिन जो उसने एक्स्ट्रा जो दिन चले गए उसके अकेले काम करने की वजह से. ठीक है, तो अजीत ने जब 2 days वर्क किया, पीयूष ने 4 days वर्क किया, तब उन दोनों ने मिलकर एक किसी काम को कंप्लीट किया. तो वही हो जाएगा हमारा कंडीशन. अजीत का कितना है? पीयूष, ये रहा हमारा पीयूष का 1 day का वर्क. तो 4 day, 4 into 4 day, जितने दिन उसने काम किया उसका 1 day का वर्क, प्लस 2 दिन अजीत ने काम किया तो उसका 1 day का वर्क, और इन सब ने मिलकर एक काम को कंप्लीट किया. दे हैव कंप्लीटेड अ होल वर्क. ठीक है, तो होल को किससे दिखाएंगे? 1 से दिखाएंगे. बस अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है बच्चे? सिंप्लीफाई करना है. तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं. बस यहाँ तक हो जाएगा हमारा. तो इसको आगे लेकर के चलते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 4/x प्लस 2/3 और माइनस 2/x दैट इक्वल टू 1. ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/x माइनस 2/x और 1 माइनस 2/3. इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2/x. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/x बचेगा. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3. 3 1 3, 3 में से 2 माइनस 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. x इज इक्वल टू 6 days. मतलब if Piyush will work alone, he can complete the same work in how many days? 6 days. ठीक है, तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, इन सब में हमने क्या करना है? कोशिश करनी है कि 1 day वर्क को किसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लेना है. कुछ भी अगर कंडीशन गिवन है हमें, तो कोशिश करनी है कि पहले सबका 1 day का वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कि अभी तक के मैंने सारे क्वेश्चंस में किया. फिर देखिए कि किसने कितने दिन काम किया. जैसे ABC में भी चल लीजिए आप, या फिर आप जो ABC या कितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको पहले 1 day का वर्क कैलकुलेट करना है. जब आपने 1 day का वर्क कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप देखिए कि कोई A या B या C जो भी वर्कर है, पर्सन है, वो कितने डेज काम कर रहा है. फिर 1 डे के जो वर्क है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, कि कितने दिन उसने टोटल काम किया, तो हमें उसके वर्क की अमाउंट मिल जाएगी. तो जितना भी वो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो ये हमारा होल वर्क है. ये जो 1 हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू होल वर्क. मीन्स एक पूरे काम को उन्होंने कंप्लीट किया, तो होल वर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज A can complete a work in 10 days, B can complete in 12 days, and C can in 15 days. All of began together, work together, but A had leave the work after 2 days of start. 2 दिन के बाद A ने काम करना छोड़ दिया, मतलब उसने only 2 days काम किया. B and B 3 days before completion the work, और B ने काम जो कंप्लीट होना था उसके 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, और सी ने पूरा कंप्लीट किया. ये सी का कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब सी ने स्टार्टिंग से लेकर पूरा काम किया है. हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट?
तो मतलब उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, अगर इस तरीके की हमारे पास कोई कंडीशन है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जर्नल चीजें वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 10 days, सो 1 day वर्क ऑफ ए 1/10, B can finish the work in 12 days, so 1 day work of B 1/12, C can finish the work in 15 days, so 1 day work of C 1/15। अब हमने कंसिडर करिए कि लेट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन x डेज, कि ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ए बी सी जो भी कंडीशन में रह के काम करते हैं वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे उस काम को, x डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल हमारी कंडीशंस थी जो हमने लिख दी। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसने मेंशन किए हैं, वो क्या है, ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days, जैसे आज काम शुरू हुआ है तो 2 दिन बाद उसने काम छोड़ देना है, तो नंबर ऑफ डेज ए वर्क, नंबर ऑफ डेज ए वर्क्स कितने हैं, 2 days। ए केवल 2 दिन काम करता है क्योंकि 2 दिन तो बाद उसने काम छोड़ देना है। नंबर ऑफ डेज बी वर्क्स, और बी देखते हैं कि बी कितने दिन काम किया, उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन मेंशन की है, 3 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क। सेम वही हमारी कंडीशन आ गई कि सपोज अगर कोई काम 10 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है 10 दिन में, और उसके 3 दिन पहले उसको काम छोड़ना पड़ेगा, काम कंप्लीट होने के 3 दिन तक, 3 दिन पहले, तो कितना हो जाएगा, अगर 10 days में कंप्लीट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 10 - 3, तो इसमें हमारे पास x डेज में वो काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और उसने काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देना है, तो उसको कितने दिन काम कर रहा है, हाउ मेनी डेज डज ही इज वर्किंग, x - 3, तो वो केवल x - 3 डेज के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और जो नंबर ऑफ डेज c वर्क x, क्योंकि c के लिए कोई कंडीशन नहीं है इसलिए x को हम c के लिए हम पूरा x डेज ही कंसिडर करेंगे। इन सब का हमें 1 डे का पता है कि इसने कितने 1 डे में कितना कर रहा है, 1 डे में बी कितना कर रहा है, 1 डे में सी कितना कर रहा है, और नंबर ऑफ डेज हमें मिल चुके हैं कि ए ने 2 डेज काम किया है, बी ने x - 3 डेज काम किया है, और सी कितने दिन काम किया है, x डेज काम किया है। बस अब इन सबको हम क्या करना है, एक दूसरे के साथ लिख करके हमने किसी एक टास्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, कर लेते हैं इसको 1/10, 1/12 और 1/15। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, 2 days 1/10, x - 3 1/12, है ना, 1/12 है बी, हाँ, एंड प्लस x 1/15। इन सब ने, ए ने जब 10 days 2 days काम किया, जब बी ने हमारे पास x - 3 days काम किया, और सी ने x days काम किया, so they have completed a work, a whole work they have completed। अब इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ठीक है ना, इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ चुका है, तो 10 6 जा, ये आ गया 12, और 12 5 जा 5x - 15 प्लस 15 4 जा, तो ये आ गया आपका 4x। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, ये x उससे मल्टीप्लाई होगा। अब बस अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो देख लेते हैं, ये और ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -3 इक्वल टू 60, क्रॉस मल्टीप्लाई में 9x इज इक्वल टू 63, दैट एम्प्लाइज x इक्वल टू 7 days। ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन में कि ए ने केवल 2 days वर्क किया है ना, बी ने x - 3 days काम किया, और सी ने पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया, तो वो जो हमारा काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 7 days में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज संजय एंड रणवीर कैन
do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They began the work together, but Sanjay leaves after some days and Ranveer finished the remaining work in 23 days. After how many days did the Sanjay leave? ओके ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हमें दोनों का दिया है कि कोई एक काम है जिसको कि संजय 45 डेज में कंप्लीट कर लेता है और रणबीर उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम करने के बाद संजय ने काम करना छोड़ दिया। जब संजय ने काम करना छोड़ दिया तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए रणवीर को अगले 23 दिन लगे, 23 डेज। सो रणवीर वर्क अलोन फॉर 23 डेज टू कंप्लीट द वर्क। सो नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड संजय लीव्स और हाउ मेनी डेज डज द संजय वर्क, मतलब कितने दिन उसने काम किया या कितने दिन के बाद संजय ने काम करना छोड़ दिया, दोनों वही बात हो गई। ठीक है, तो जो हमें कॉमन चीजें जो हमें हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। संजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज, सो संजय 1 day वर्क 1/45। रणवीर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, सो 1 day वर्क ऑफ रणवीर दैट इज इक्वल टू 1/40। ओके, नाउ लेट वी आर कंसिडरिंग लेट संजय वर्क्स फॉर x डेज, मतलब संजय ने कितने दिन काम किया, x दिन काम किया, मतलब x डेज काम करने के बाद आफ्टर वर्किंग x डेज ही लीव दी वर्क। सो when Ranveer is working alone, he has taken more 23 days to complete the work. So now for how many days did Sanjay work? X days तो उसने संजय सॉरी for how many days रणवीर वर्क, देखो x days तो उसने किसके साथ काम किया, संजय के साथ काम किया। ठीक है, संजय के साथ x days काम करने के बाद उसको और 23 डेज लगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल जो रणवीर ने काम किया है दैट इज इक्वल टू x + 23। सो वर्क डन, द नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय रणवीर दैट इक्वल टू x + 23। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बाकी सब हमारी कॉमन चीजें हैं कि ये x + 23 क्यों हो गया, क्योंकि देखो x डेज तो दोनों ने साथ में काम किया, रणवीर भी काम कर रहा था, संजय भी काम कर रहा था। x डेज काम करने के बाद संजय ने जॉब करना छोड़ दिया, तो वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए रणवीर को और 23 डेज लगे। तो x तो उसने संजय के साथ काम किया था और 23 डेज उसे अकेले काम करने पड़े, तो टोटल जो रणवीर का वर्क है वो x + 23 है। ठीक है, तो बस अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं कि x डेज है संजय का और 1 डे कितना है संजय का 1/45, तो x इंटू 1/45 प्लस x + 23 और कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है 1 डे वर्क, कितना है रणवीर का 1/40। तो दोनों ने मिलके किसको किया है, एक कंप्लीट टास्क को कंप्लीट किया है, एक वन टास्क को कंप्लीट किया, दे हैव कंप्लीटेड अ होल वर्क। ठीक है, अब इसमें हमको जो इसमें जो एलसीएम आता है ना, इन दोनों का एलसीएम है 360। ठीक है, उसको मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, x/45 प्लस x + 23/40, इन दोनों का जो एलसीएम है उधर फाइंड आउट कर लेते हैं उसको ऊपर। चलिए, इनका जो एलसीएम है वो है 360। ठीक है, तो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये होता है आपके पास 8 टाइम्स, ये यहाँ से कैंसिल होता है 8 टाइम्स करके देख लेते हैं। 8 5 जो 40, कितना कैरी 4 कैरी, 8 32 32 32, 8 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इसमें, 9 टाइम्स है ना, 0 से 0 कट गया 9 टाइम्स। ठीक है, 8x + 9x, 8x + 9x, 9 3 जा 2 कैरी और 200, ये हो गया 360 एलसीएम उधर जा करके। ठीक है, तो ये हो गया 17x = 360 माइनस 207, ये आ रहा है 153। ठीक है ना, और 10 - 7 आ गया आपका 3, 5 - 2 153। सो x = आ गया 153/17, तो ये जाता है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो आफ्टर वर्किंग 9 डेज संजय लीव द जॉब, तो आपका
इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। इसमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि 1 डे का वर्क कैलकुलेट करना है। 1 डे का वर्क कैलकुलेट करने के बाद उसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद फाइंड आउट करो कि किस ए, बी, सी या संजय या कोई भी पर्सन है उसने एक्चुअल में कितने दिन काम किया है। तो जितने दिन उन्होंने काम किया होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 डे के वर्क से। फिर उन दोनों को जितने ए, बी, सी कितने भी पर्सन होंगे उन सबको ऐड करके आपका एक कोई भी टास्क कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हो जाती है। आप इन क्वेश्चनों को देखिए, प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।